अच्छा, वो ट्राई ट्रायल वर्जन ट्रायल ट्रायल 7 बेसिस था। days। ठीक है, एक मिनट, ये स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। हाँ, अब विजिबल है? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे ये सब मैंने प्लानिंग डेटा वगैरह यहाँ पे मैंने बस इंटीग्रेट किए थे। नेक्स्ट टाइम वो है। ओके, यहाँ पे आपको लॉग ऑन करना है। हम्म, Okay. ओके। यहाँ पे मैंने TRA04 करके एक बनाया हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप जब जाओगे, आपका J04 वगैरह समथिंग है ना आपका, या JK कनाडा वगैरह। ओके, हाँ जी। डू वन थिंग, यहाँ पे जैसे अगर जाते हैं तो यहाँ पे मैं अगर एडिट में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग 04 करके ये वाला जो प्लानिंग एरिया है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो आप एक काम करना, आप वही चीज़ रहने देना, एडिट में जाने के बाद में प्लानिंग एरिया चेंज कर देना। गॉट इट? नहीं सर, बिकॉज आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही? I can see the Excel only, but up, not the further. अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको यार, ये एक मिनट बस। अब दिख रहा है? Yes sir. ओके, हाँ। तो ये देखो, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, आपका J02 ये पहले का बना हुआ है। ओके, यहाँ पे Okay. मैंने एक ऐसे क्रिएट, ये मेरे साइड ही दिखेगा क्योंकि ये मैंने एक्सेल में क्रिएट किया है। ठीक है, तो Okay. यहाँ पे आपको सप्लाई में ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि इट इज़ टू कम्बरसम, क्योंकि जो डेटा मेंटेन करना पड़ता है वो बहुत भारी है। आप बस समझ लो इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको सप्लाई चेन मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप एक काम कीजिएगा, आपका जो भी प्लानिंग एरिया बना होगा उससे बस एडिट में जाइएगा, और नीचे में जो भी Okay. लुकअप एरिया में ये जो प्लानिंग एरिया आपको जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग 04 करके मैंने एक सैम्पल प्लानिंग एरिया है। ठीक है, तो आप ये Okay. सैम्पल प्लानिंग एरिया में जाइए जो मैंने क्रिएट करके रखा है, ये ओके कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम पीछे जाते हैं, कैंसिल करते हैं इसे। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है TRA04। ठीक है, क्या है ये पासवर्ड, क्या है यार? वेलकम Welcome टू, हाँ, one. वेलकम 3। ओके, Case sensitive. First letter capital. अरे क्या हो गया? ट्रेनिंग 04 तो First बराबर letter है। no, first letter capital for welcome. मम्मी 3 बरोबर, ठीक है। It's one sir only. Welcome one, not one अच्छा two three. वन है, Welcome ओके। one. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना मास्टर बुक पे, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के बाद में मास्टर डेटा, आप जैसे आपको मालूम है प्रोडक्ट पहला है हमारा प्रोडक्ट। You will provide the list of master data to be. Yeah, I will provide you the list of the master data, as well I will provide you the RDS data. RDS data means by utilizing that particular data you are able to create a supply chain. Okay, Okay. in that supply Okay. chain you will get to know, because what happened initially, why I am not sharing, because it's been associated with the higher professionals. Okay, at that Okay. particular time there will be the lot of data.
because it will unnecessarily it will create a doubt in your mind. Okay, because as you are not a person, you are not in the streamline of this thing, no, your supply chain management. Okay, so it requires a lot of means a lot of efforts will be taken in that particular case. Okay, because Okay. for that particular thing in a mediocre level, when you are going to move on, at least at that particular time you should know that which are the prerequisite fields, which are the mandatory fields we have to fill. Okay, it's been essential, and it's my what you can say, it's my really my advice from my side to you. If you want to move on for the further studies in the supply chain, okay, because this particular area has been associated with the supply chain. Got it? Mm-hmm. If you, because even though you are doing this thing, it's a good thing. Your knowledge adaptability and your learning aptitude is very good. Okay, you are able to grasp anything very quickly. So based on that particular thing, if you are moving for the any supply chain courses, got it, because this is just a tool. Okay, Okay. because there are a lot of things that you have to put efforts on. Okay, and it require near about 6 to 8 months. I'm telling you, I am just saying it's a 6 to 8 month, but based on your guts and adaptability, how you are getting through that particular case situation, okay, it will be minimized also. Okay, Okay. it is not possible because what happened, most of the person who are coming directly, it's not possible that everything, because everything what happened, these things which we are going to perform it on the global scale. Okay, so the prerequisites you know very well. Only the thing is the add-on thing, because there are certain criticalities associated with the supply chain planning. Okay, for that particular thing you have to move on with the further studies as well. Okay, so this thing again this one minute, customer customer then what, location, they are simple master data, then another look customer product. Okay, is it Okay. customer product, then location product, no, location product. Okay, then what you have, customer product, location product, and what you have again, uh, you have currency. If you want to give, then give, otherwise no, not essential. Then you have to then exchange rate. Okay. Then what you have, TLN master data as location source. Okay, then add on to that, then you have customer load. This source data is referred as what, it's a lane data. Lane means transportation lane. Okay, T lane, we are calling it as a T lane data. Okay, this thing only you have to understand. Okay, these are the lane data, we are not operating those things, we are not, it's completely messing thing. Customer source, then you have customer source is there, then you have production source header, then you have source item. Then you have resource master data, then you have production source resource. Okay, this much master data. Okay, you need to manage. I'm clicking OK here. Oh, got it. There's a handful of data you have here.
Also, the segmentation code has been already run here. Got it? For product, here you will get to know that what are the different kinds of things. Okay, basic XYZ code. Okay, like this. Then you have customer master data. Is it this customer master data? Which thing you have to maintain? Okay, and then you have location master data. Then you have customer product. Okay. Then you have location product. Got it? Then you have currency. Got it? All the sets of the currency were there. Neither a single has been skipped off. Then you have conversion factor. Okay, likewise. And then you have the currency ID. You have conversion. Exchange rate was there. Then you have location source. Okay, this is the location source. Got it? And then you have customer source. This customer source. Base version, customer ID, location ID, product ID. Got it? And then But why the customer transportation lead time means? yeah. Sorry, you have maintained the customer transportation हाँ. lead time. So customer transportation lead timing is as I told you, when you ordered something, you have a certain lead time, means it's of a 1 day. Okay, in on a very standard pattern we are maintaining here the one you can maintain 3, 4, 5, but it will be in the days. Got it? So if you are fulfilling the requirement of the customer, the lead time what you are supposed to be you are putting your lead time as a 1. It means you are fulfilling the customer demand within a 1 day as per the schedule agreement. Okay, whatever thing is going to be here, it is under the schedule agreement again. Then customer ratio is there, sourcing ratio. Okay, so customer sourcing ratio means what? Customer source means what? The source means the source of supply. Okay, so here how many customers you are fulfilling? So one means total 100 customers or total 100% customers you are fulfilling here. So it's a ratio, and this ratio is this one means it's a coefficient. Okay, so one is considered as 100%, and one is the highest percent, means the it is the means बोलते हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका कट हो गया तो कितना बच रहा है 1. 1 मीन्स a total value. Okay, if you are not getting a total value, if your customer sourcing ratio is, it may be 0.5, it may be 0.1, it may be 0.2, or it may be 0.3. Okay, It but when it will be 0.1, 0.3, as in one scenario. You can create if you are आपको अगर ऐसा लग रहा है तो you can create also like that. Okay, so No, in that's that what I'm asking कि ऐसा कब होता है? मैं just knowledge के लिए पूछ रही हूँ. ऐसा कब होता है, देखिए एक मिनट एक मिनट बस देखिए ये कस्टमर सोर्सिंग रेशियो. ओके, अब यहाँ पे ये दो चीज़ों से बना हुआ है, कस्टमर से और ये सोर्स. ओके, और उसका रेशियो. सॉरी, आपको रेशियो का मतलब मैं पार्ट बाय पार्ट जा रहा हूँ. रेशियो. ओके, कस्टमर. तो अभी सबसे पहली बात है कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए. पहली बात यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे डिमांड फुलफिल आएगा. ओके, डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे सपोज आपके सपोज ये सोर्सिंग रेशियो, और रेशियो का कैसे निकलता है, 1:1 में निकलता है. 1:1 ऐसा.
ओके। Mhm. तो हम इश टू यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब बीच में प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं देंगे, हम सिंगल सिंगल इंटीजर ही यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, जो डेसिमल इनपुट डेसिमल आउटपुट होगा। तो मेरे पास में टोटल जो कस्टमर है मेरे वो 100 है, ठीक है, और जिनकी डिमांड मैंने फुलफिल किया है वो भी 100 है, सॉरी वो भी 100 है। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए मैम यहाँ पे, ये हो गया आपका सोर्सिंग रेशियो। ओके। Okay. और यहीं पे अगर आपके टोटल कस्टमर है 100, ओके, कस्टमर 100 है आपके, और आपने कितनों की डिमांड फुलफिल की है, 50% लोगों की डिमांड फुलफिल की है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, क्या रेशियो आना चाहिए इसमें, 0.5. 0.5। समझ में आ रहा है कुछ। जब जब आप टोटल मार्क्स देते हैं ना बच्चों को, जब आप वैल्यूएशन करते हैं ना, वैल्यूएशन के समय में आप टोटल मार्क्स नीचे रखते हैं, ठीक है, Mm. और उसमें से जितना भी वो मार्क्स इनकर करता है वो उसमें से होता है। तो किसी बच्चे को ऐसा नहीं हो कि 100 में से 101 मार्क्स मिलते हैं, मिलते किसी को नहीं Okay. मिलते। ओके। सो व्हाट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट, जो भी रेफरेंस पॉइंट रहता है उसे हम कभी भी डिनोमिनेटर में रखते हैं, गॉट इट। और जो भी चीज़ हमको फुलफिल करनी रहती है, ठीक है, विथ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर थिंग कितना फुलफिल हुआ है उसका हम रेशियो निकालते हैं, गॉट इट। लाइक वाइज आपको वहाँ पे रेशियो क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का हुआ, और ये वाला ये बिजार थिंग है, ओके, कैसा भी हो सकता है, 1 दिया है, 0.1 दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 30 लोगों का ये हो चुका है, 30 लोगों का डिमांड ही फुलफिल हुई है, बस यहाँ पे आ गया आपका 0.3 का रेशियो हो गया, सोर्सिंग रेशियो Mm. यहाँ पे। समझ में आ रहा है सोर्सिंग रेशियो। Suppose जी. you are present in the Canada, okay. Most of the person they are living in India and they are moving and settling into the Canada, taking permanent PR for what sake, to have a very good employment, because the employment opportunities are good there as compared to India, and apart from all those things, okay. So there are certain agencies who are just taking the heat of it, that no, these were the candidates and they want to deploy those particular candidates and get them employed within the Canada, okay. Then what happened, normally, for total visa, if the Canada is having here about for a particular year, they have given a sanction to 1000 PR, 1000 Mm. PR, okay. Out of that, if suppose a thousand of and the applicants who has been applied over there, they are more than 1000, okay. Mhm. Now I am not considering more than 1000, okay. But if the 1000 candidates have been applied over there, okay. So the Canadian government is okay, their embassy is telling okay, no, we have the position, we have the 1000 candidates and 1000 PRs have been available over here, okay. And also the employment opportunities is also well available for them. So what happened at that particular time, their sourcing ratio will be 1, means it's a standard, means 100% fulfillment they have provided to their country in terms of resource activity, got it। Okay. लाइक समझ में आ गई ये चीज़। इसी जी. प्रकार से कस्टमर सोर्सिंग रेशियो आएगा, फिर कभी आपको प्रोडक्शन रेशियो आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन सोर्सिंग सिंग रेशियो, ठीक है। अब प्रोडक्शन सोर्सिंग रेशियो में क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे प्रोडक्शन सोर्सिंग रेशियो में आपका सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन करता हूँ मैं, टोटल प्रोडक्शन and the amount of products produced, got it। अब सिमिलर इन सिमिलर फैशन दिस पर्टिकुलर थिंग विल गोइंग टू हैपन, कंट्रोल सी, कंट्रोल, मैंने ये जो न्यूमेरिकल डिजिट वगैरह रखे हैं, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, मॉनिटर, दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। Okay. तो आप ऐसे मत चले जाइए कि मैंने ऐसे ही रखा हूँ तो ऐसे क्यों आ रहा है, ये बस अंडरस्टैंडिंग है। आप कुछ भी वेरिएट कर सकते हैं वहाँ पे, दिस टोटल सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइजेबल फॉर यू, ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो वॉट एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ रैशनल वे, दैट्स इट, ठीक है।
कस्टमर सोर्सिंग रेशियो, फिर क्या होता है, कस्टमर सोर्सिंग होता है आपका, प्रोडक्शन सोर्सिंग होता है। ये दो ऐसे सोर्सिंग रेशियोज आते हैं, और बहुत सारे रेशियोज आते हैं उसमें। लेकिन जो भी रेशियोज आएंगे, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टूड, रेशियो कैलकुलेट करते समय you have a total reference quantity has been present in the denominator and the which has been consumed out of it, it has to be placed in the numerator. Based on that Okay. division criteria you will get the ratio. Got it? चलिए अब वापस। Mm-hmm. ठीक है। अब यहाँ पे फोकस कंजम्पशन मोड है। ठीक है, फोकस कंजम्पशन मोड में इसने 105 ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उसने दे दिया है, इसने शायद बाहर से कैलकुलेशन किया है या उसने ऐसे ही डाल दिया है यहाँ पे। ओके, Okay. उसके बाद में यहाँ पे आता है रेशियो टाइम सीरीज इंडिकेटर। अब ये जो टाइम सीरीज इंडिकेटर है मैडम, इसको ये चेक मार्क प्रोवाइड किया गया, ये एक्स नहीं है, ये चेक मार्क है। ठीक है, अगर अगर ये इंडिकेटर अगर यहाँ पे एक्स यहाँ पे कंसिडर किया गया है, इसका मतलब है कि जब भी आपका कुछ भी सप्लाई प्लान रन होगा तो ये टाइम सीरीज को इंडिकेट करेगा और उसे कंसिडर करेगा। गॉट इट? टाइम सीरीज को इंक्लूड करेगा। ये चेक बॉक्स में हम चेक मारते हैं ना, क्रॉस या राइट करते Mm-hmm. हैं, उसी प्रकार का ये है। उसके बाद में टाइम सीरीज की प्रॉपर्टी आती है। ओके। We how to find out this, sir? हम्म, अभी हम कैसे निकालते हैं कौन सी चीज़? टाइम सीरीज प्रॉपर्टी एज इन हाउ? टाइम सीरीज आपको जैसे बताया था ना हम लोगों ने, एबीसी सेगमेंटेशन रन किए थे ना हम लोगों ने। जी। ओके, उसमें हम लोगों को पता चल जाता है। या फिर हम लोग क्या Okay. करते हैं, फोरकास्ट ऑटोमेशन रन करते हैं। ठीक है, फोरकास्ट ऑटोमेशन रन करते हैं, उस समय हमको मिलता है ये सब चीज़ें। एक मिनट, फोरकास्ट ऑटोमेशन मिल जाता है, अदरवाइज ये वाला जो डेटा है हमको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है उनकी तरफ से, जो Okay. ये इसी साइट से आता है ये सब डेटा। ठीक है, ये साइट से ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, जो डेटा आ रहा है, कंटिन्यूस डेटा Okay. यहाँ पे, रेगुलर डेटा है। ठीक है, ये हो गया। उसके ये कौन सा है ये वाला डेटा हमारा, कौन सा है ये, कस्टमर सोर्स। अब आते हैं प्रोडक्शन सोर्स, ये हेडर वाला पार्ट है। अरे, ये प्रोडक्शन सोर्स है। ठीक, यहाँ पे लोकेशन की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है। ये जो मैंडेटरी फील्ड है मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मेंटेन करना है। वो जो मैंने पहले आपको दिखाए थे वो सब पार्शियल एस्पेक्ट्स है, दो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स विच इज़ टू बी मेंटेन। ओके, जो Mm-hmm. मैंडेटरी फील्ड है ये सब है, प्रोडक्ट आईडी, सोर्स आईडी, ये सब चीज़ें आपको दिखाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आईओ है, इन्वेंट्री से एसोसिएटेड है। ये फ्रोजन विंडो, यहाँ पे अगर आपको 1 2 3 जो भी दिखाना है, बट ये कोई रन नहीं कर रहे हैं, ये ग्लोबल बेसिस पर रन किया जाता है। उसके बाद में लीड टाइम, प्रोडक्शन का लीड टाइम कितना होता है आप मेंशन कर दीजिए अगर आपको मेंशन करना है तो। ठीक है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 1 दिन का रखना है, लेकिन सब में जो भी आप मेंशन करते हो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, बस इतना है। लीड टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला क्या है मैडम, कुछ याद है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, इज इट, Mm-hmm. है ना? तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोर्ड मास प्रिंसिपल जो आप बोल रहे थे। तो पहले क्या Right. करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, उसके बाद में आपको मीन भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड Mm-hmm. डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही होता है या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, अब यहाँ पे मैं फाइनल डेविएशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब ये सब डेविएशन कब क्रिएट किया जाता है, सपोज मेरी डिलीवरी हो गई है। ओके, और यहाँ पे मेरा अब उसने बोला है लीड टाइम, बोला है ना, लीड टाइम बोला Mm-hmm. है, और लीड टाइम मैंने सेट किया। Coefficient of lead हाँ, time. यहाँ पे बस मैंने 1 ही निकाला। ओके, लीड टाइम मैंने 1 ही मेंटेन किया है। कितनों के लिए 1 मेंटेन किया मैंने,
जो 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए प्रोडक्शन के लिए 1 लीड टाइम मेंटेन किया मैंने, ठीक है। 10 के लिए मैंने 1 लीड टाइम मेंटेन किया हुआ है। ओके। अब ये डिवीजन नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये 10 आपके टोटल यहाँ पे वो जो थे ना, जो अपने प्रोडक्ट्स है आपके पास में जो फुलफिल कर रहे हम्म। हो जो कस्टमर को, वो 10 प्रोडक्ट्स के आप लोग एक दिन में फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये 10 का जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वही यार, ये 1 लीड टाइम है 10 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन कैलकुलेट मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू मीन क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मीन टाइम, और सॉरी लीड टाइम है, लीड टाइम डिवाइड में क्या करेगा, टोटल काउंट्स, जितने काउंट्स होते हैं। टोटल लीड टाइम, ठीक है, टोटल लीड टाइम। सर उल्टा नहीं कर रहे आप? टोटल लीड टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ लीड टाइम नहीं होगा? हम जब कैसे करेंगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, पहले विदाउट विदाउट इक्वल। एक मिनट, पहले आप समेशन लोगे ना, तो समेशन में 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार करोगे, तो अगर इसका फैक्टोरियल लेंगे तो आप 10 बार कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास में 10 प्रोडक्ट और 10 के लिए आपने जो लीड टाइम अपनी जो स्टैंडर्ड लीड टाइम मेंटेन कर रहे हो वो 10 का ही है। रिजल्ट क्या है, 1, मीन आपका 1 आता है। हम्म। आता है कि नहीं आता, गलत हो, ओके। पहले आप 1 फिर प्लस दूसरे का लीड टाइम 1 + 1 ऐसे ही करोगे आई ना। अंडरस्टैंड। हाँ जी। हाँ हाँ, तो ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। तो ये हम्म। इनपुट आएगा आपका, ये इनपुट आएगा, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन आप जब फाइनल अब डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिवीजन में फाइनल से अगर कैलकुलेट करूँ तो फाइनल मेरा जो है, ठीक है, फाइनल मतलब क्या होगा, डिलीवर्ड वाला, है ना। और लीड टाइम, तो यहाँ पे लीड टाइम जो होगा ये फाइनल लीड टाइम होगा, फाइनल लीड टाइम। तो इसको हम कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज फाइनल लीड टाइम जाते आते मुझे कितना समय लगा, 2, ओके। और इनिशियल लीड टाइम मेरा कितना था, फाइनल लीड टाइम मुझे लग गया 12, और जो इनिशियल लीड टाइम कितना था मेरा, 10। जो हमने मीन निकाला वो फाइनल लीड टाइम था। कौन सा, सॉरी, फाइनल लीड टाइम हमें कैसे पता चला सर? हाउ डिड वी? फाइनल लीड टाइम जैसे हम लोग फोरकास्टेड और एक्चुअल्स को माइनस करते हैं, ओके। तो हुआ कैसा, यहाँ पे हम लीड टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे करेंगे, लीड टाइम का मतलब है कि एक प्रोडक्ट डिलीवर करने में या बनाने में मुझे एक दिन का समय लग रहा है, गॉट इट, हम्म। ठीक है। उसी प्रकार से मेरा डेटा यहाँ पे, तो 1, एक मिनट, यार सॉरी, ये लीड टाइम 1 1 है, ओके। और यहाँ पे 1 2, ये ऐसे क्यों हो रहा है यार, एक मिनट, 1 2, तो जो भी हो आपका, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ओके। ये प्रोडक्ट लिस्ट है अपनी, जिसका प्रोडक्शन होने का है, और इसको हम्म। ये लीड टाइम है, ठीक है। अब यहाँ हम्म। पे इनिशियल लीड टाइम और फाइनल लीड टाइम किसे बोलेंगे, इसे नहीं बोलेंगे हम लोग, ये तो स्टैंडर्ड लीड टाइम्स हो गए हमारे। तो ये सब क्या हो ओके। गया हमारे, इनिशियल लीड टाइम, लीड टाइम। और आपका फाइनल लीड टाइम जो बोलेंगे ना यहाँ पे, फाइनल लीड टाइम मतलब जब प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। सपोज इसको 2 दिन लग गया, ठीक है, ठीक है, ओके। इसको एक ही दिन लग रहा है, इसे भी एक ही दिन लग रहा है, ठीक है। और ये बाकी सबको एक ही दिन लगा है। अब यहाँ हम्म। पे मैं टोटल करता हूँ,
ठीक है, टोटल करता हूँ। यहाँ कितना आना चाहिए मैडम? यहाँ पे 10, 10 आना चाहिए। और यहाँ कितना आना चाहिए? 11। 11 आना चाहिए। नहीं, हाँ 11 आना चाहिए। ओके, अब ये क्या हो, अब यहाँ पे हमारा डेविएशन, अब डेविएशन चेक करना है अपने को। मैं बस डेविएशन लिख रहा हूँ। डेविएशन, डेविएशन का दूसरा शब्द क्या है? एरर, बरोबर। डेविएशन मतलब एरर ही है ना, और क्या है। राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल लीड टाइम क्या मिला हमें? 11। इनिशियल लीड टाइम कितना मिला हमें? 10। इक्वल टू कितना हुआ? 1। आया समझ में कुछ? हम्म? अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करने जाओगे, 1/1 इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ओके, ओके। अंडरस्टूड। तो ये यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लीड टाइम के लिए आ गया, समझ में आया? इस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। बस आप टेक्निकलिटी समझें यहाँ पे। बाकी मैं देखो कंडीशन कैसी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता है और उस हिसाब से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल फील्ड से थे, तो शुरू में हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। ओके, किसी बच्चे को वाइवा में किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जो लॉ केमिस्ट्री के लिए फॉलो होते हैं वही लॉ बायोकेमिस्ट्री के लिए फॉलो होते हैं, ठीक है। उसने नहीं कह दिया, वहीं पे वो फेल हो गया। रीज़न ये है, केमिस्ट्री में बायोलॉजिकल में साइंस डोमेन से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल्स हैं वो चाहे बॉडी के अंदर हो या बाहर हो वैसे ही काम करते हैं। ओके, उसी प्रकार से कोएफिशिएंट वेरिएशन या फिर डेविएशन, एरर, इसके जो फॉर्मूलेज हैं ना मैम, जो आपने स्कूल में ही पढ़े होंगे वो वैसे ही रहेंगे। ओनली द ओके। कंडीशन इज दैट उसके साथ में उसको हम आप उसको बस एक नई पहचान दे रहे हैं। कस्टमर सोर्सिंग के लिए रेशियो निकालो, लेकिन सोर्सिंग रेशियो सिंपल सी बात है जो बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। आपको बस समझना है कि नहीं किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। रिलेटिव एस्पेक्ट में आप पढ़े, इसको देखो बस। ये हो गया। So just okay, can I take a minute for a break for a यस, minute? ये What? Just for a minute. ये
ये सब। हाँ जी, हाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ये मिनिमम लॉट साइज मैक्सिमम लॉट साइज ये जो है ये मैनुअली पुट किया जाता है। ठीक है, ओके। इसमें कुछ नहीं है। बाकी तो बाकी प्रोडक्शन सोर्सिंग रेशियो है, जैसे मैंने सब बताया अभी सोर्सिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी पैटर्न में और कैलकुलेट आपने कर कई देते कई जगह पे ब्लैंक हैं। भी ज़ीरो, छोड़े हुए हैं सर। हाँ ब्लैंक अब उनकी इच्छा है, उनको रखना है नहीं रखना है, उनको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये बनाने वाला मैं नहीं हूँ, गॉट इट। ये मेरे पास में रैपिड डिप्लॉयमेंट सिस्टम के तौर पे एक मेरे पास में डेटा अवेलेबल है। ओके, इतना सारा डेटा तो ओके। प्रैक्टिकली में होता क्या है, देखिए दिस इज़ अ ट्रेनिंग सेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ट्रायल एंड एरर बेसिस हम लोग नहीं कर सकते। ओके, ओके। क्योंकि हमको ट्यूट करना पड़ता है सर्टन स्टूडेंट्स को। तो ये जो आर डेटा है इसके माध्यम से ओनली द कंडीशन इज डैट योर फोकस शुड बी हियर हियर, कि आपको आप जो एक ऑपरेशन रन करने जा रहे हैं आपका ऑपरेशन रन होना चाहिए। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग या इट्स वेरी मीन्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि नहीं ये है क्या चीज़ और क्या नहीं। ओके, लेकिन इसलिए मैंने कहा है मैं एक बार जो सप्लाई प्लानिंग वगैरह का है अपना ये जो है सप्लाई चेन मॉड्यूल एक बार सीख लीजिए आप एक बार। बाकी ये सोर्स टाइप है। ठीक है, तो सोर्स टाइप में पी टाइप यू टाइप वगैरह ऐसे दिए जाते हैं, ये बस इनिशियल्स है। ठीक है, इनिशियल से पी स्टैंड फॉर। पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन ओनली, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन ओनली। और यू जब प्रोडक्शन नहीं होता तो उसके लिए बस इनिशियल दिया है इसने यू। ओके। ओके, और बस ये हो गया, फिर उसके बाद में सोर्स आइटम आ जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपोनेंट कोएफिशिएंट है, कंपोनेंट को समझ लीजिए। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, ओके, उसका यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप फिनिश प्रोडक्ट को शायद तक कि ज़्यादातर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आइटम ये कौन सा वाला, ये आइटम वाला है क्या? आइटम है ना, आइटम है। तो कंपोनेंट का कोएफिशिएंट है। अब कंपोनेंट कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ठीक है, एक पूरा कंपोनेंट बनाने के लिए कितने कंपोनेंट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने कंपोनेंट यूज़ किए। ओके, तो वैसे ही होगा। डिनोमिनेटर में आपके टोटल कंपोनेंट्स होंगे और न्यूमरेटर में आपके कंज्यूम कंपोनेंट होंगे। ठीक है, और टोटल कंपोनेंट में से अगर दोनों कंपोनेंट सिमिलर रेशियो में आ रहे हैं तो 100% कंजम्पशन हो रहा है, उस समय आप 1 ही रखेंगे उस चीज़ को। सोर्स आइटम की आईडी दी हुई है यहाँ पे, आईडी है ये बस। ठीक है, जो इन्होंने मेंटेन किए, आपको जो लगता है आप वैसे मेंटेन कर सकते हैं। बाकी बीच का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्स में आप जाएंगे, रिसोर्स आईडी का मतलब होता है वर्क सेंटर। वर्क सेंटर मतलब है जो प्रोडक्शन लोकेशन जहाँ पे काम होने वाला है। तो यहाँ पे सब असेंबली होगी, यहाँ पे असेंबली होगी, यहाँ पैकिंग होगी, यहाँ सब असेंबली होगी, तो ये सबके दिए हुए और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दिए हुए। ठीक है, बाकी ये बफर जोन वफर जोन कोई काम का नहीं है। ये सब जब बड़े बड़े जब हम लोग रन करते हैं प्रोडक्शन यूनिट वगैरह उस समय जब बैच जॉब चलते रहते हैं तो बीच में रिफ्लेक्ट करता है। तो होगा यूँ कि ग्रीन परसेंट, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में क्या क्या होता है, ग्रीन रेड और येलो नो। ठीक है, ग्रीन का मतलब है कि नहीं वो जो कैप यूटिलाइजेशन बफर कितना मैनेज किया हुआ है परसेंटेज के मायने में वो बताएगा वहाँ पे। ठीक है, जो इजीली अवेलेबल है। रेड बता देगा आपको कि नहीं अब बंद करना चाहिए। और यहाँ पे अगर रेड में अगर कुछ चीज़ आ गया तो सीधा बंद कर देना पड़ता है। ठीक है, वो पता चल जाता है कि अपना स्टॉक भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे स्टॉक लेके आ जाओ। और येलो मतलब चल सकता है। ठीक है, इस हिसाब से वो डेटा परसेंटेज वाइज वहाँ पे दिखाता है। लेकिन ये जो येलो और रेड में आने से पहले ये ग्रीन तक के ही रखते हैं। ठीक है, और लेकिन ये सब रियल टाइम बेसिस पे चलता है जब लगातार हमारे पास बैच जॉब आते रहते हैं और चीज़ें रन होती रहती है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आता है प्रोडक्शन सोर्स रिसोर्स। अब प्रोडक्शन सोर्स रिसोर्स बोला है। ओके, तो ये आता है आपका, इसको बोलते हैं हम पीडीएस, प्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें रिसोर्स आईडी मतलब जिस वर्क सेंटर पे आप काम करने जा रहे हो, और सोर्स आईडी मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट आईडी और लोकेशन आईडी का कॉम्बिनेशन होता है। ओके,
फिर यहाँ पे सोर्स आईडी है और फिर बाद में कैपेसिटी कंजम्पशन रेट है। कैपेसिटी का टोटल कैपेसिटी 100 की और कंजम्पशन भी 100 का, तो दोनों मिला दोनों का रेशियो आता है यहाँ पे 1। तो वैसे ही यहाँ पे रेट भी कैलकुलेट होता है, लेकिन रेट जो है वो टाइम डिपेंडेंट कंडीशन होती है ना, टाइम को देख के रेट कभी भी कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे ही है, लेकिन इसमें टाइम वाइम का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें रहेगा कि भाई कितना कंजम्पशन हो रहा है, कैपेसिटी कंजम्पशन कितना है, वो चीज़। बाकी तो इधर कुछ है नहीं कोई मैंडेटरी। तो मैम ये इतना है, ये मेडिकोर लेवल का डेटा है। ओके, ये आप यूज़ कीजिए। आप एक सप्लाई चेन आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है आपको, आप इसका रेफरेंस लीजिए और आप क्रिएट कीजिए। ओके, सप्लाई चेन। उसके बाद में हम लोग जाएंगे, अब इसमें आपको इनपुट की फिगर कौन से लगेंगे और आउटपुट की फिगर कौन से लगेंगे। ओके, तो आप एक मिनट, यहाँ पे विक प्रोडक्ट कस्ट में देख लो एक बार। विक प्रोडक्ट कस्ट आपको कोई दूसरा लेवल यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बस यही लेवल यूज़ करना है, बाकी इसमें मत जाना, बाकी इसमें फालतू और कन्फ्यूजन आए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आगे कैलकुलेशंस। इसमें बस आपको एक ही चीज़ देखनी है, आपको डिमांड देखना पड़ेगा और आधे ज़्यादा स्टोर की फिगर आएंगे। आउटपुट की फिगर बस आपका रिसिप्ट निकलेगा और सप्लाई निकलेगा, ठीक है। यहाँ की फिगर्स में जाते हैं। तो की फिगर्स आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअल क्वांटिटी, टाइम सीरीज वाला मीनो क्या नहीं, कैलेंडर में कहा गया यार, ये कैलेंडर चाहिए। की फिगर्स, ठीक है, यहाँ आपके एक्चुअल्स क्वांटिटी आ जाएगी, मैं वो आपको भेज दूंगा कौन से आपको की फिगर मेंटेन करना है, ठीक है, मैं लिस्ट ही भेज दूंगा, बस उतने ही की फिगर यूज़ करना। और आपको आपका आउटपुट बस रहेगा सप्लाई, और आपका आउटपुट रहेगा सप्लाई और रिसिप्ट्स का। यहाँ पे देखिए एक बार, सप्लाई, सप्लाई का ये कस्टमर सप्लाई, इसका क्या बेस पे विक प्रोडक्ट कस्ट, ठीक है। जाएगा कांस्टेंट डिमांड, एक मिनट, मैं की फिगर की लिस्टिंग में कल देता हूँ आपको, ठीक है। आज आप पहले ये अपने हिसाब से बना लो, ठीक है, कल इसको पूरा याद करके। अगर अगर सर मुझे यही एज एन हाँ अगर यही डेटा यूज करना है तो फिर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ, मैं वही कहा आपको, मैं ये सब डेटा इसलिए अभी क्या है कि ज़्यादा आपको फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई डेटा अपलोड मत करो, ज़बरदस्ती बार बार डेटा अपलोड करना हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी में ही बैठ के आपको एडिट भी करना है, ठीक है, आपके हिसाब से, उसमें आपको कुछ कोड्स दिए हुए हैं ना, वहाँ पे सभी कोड्स में है, प्रोडक्ट आईडी कोड में हम्म, है, लोकेशन कोड्स में दिए हैं आपको, अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको आपके हिसाब से एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो वो चीज़, वो मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो okay, मेरा यही कहना था कि आपका प्लानिंग यूज़ ना करते हुए आप इसी प्लानिंग एरिया पे काम कीजिए, ठीक है, वो आपका ही प्लानिंग okay, एरिया, उसी पे काम करो, ठीक है। फिर उसमें आप जो भी आपको लगता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, बस अब ये है क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन वाला चीज़ है अभी, इसलिए फिर इसके बाद में आप की फिगर मेंटेन कीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे पास की फिगर का भी डेटा होना चाहिए, तो की फिगर का डेटा वैसा डाल देंगे उसमें, ठीक है। आपको बताता हूँ कि इनपुट की फिगर आपको, इनपुट की फिगर आपके ज़्यादा रहेंगे, तो इनपुट की फिगर में ज़्यादा आपको नहीं जाना है इधर उधर से। मैंने अपना डिपेंडेंट डिमांड इंडिपेंडेंट डिमांड जैसे लेते हैं, हम चुपचाप सिंपल डिमांड पकड़ेंगे, ठीक है, स्टॉक ऑन हैंड, ऑफ ऑन हैंड, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें पकड़ लेंगे, और बाद में आपका आउटपुट रहेगा सप्लाई और रिसिप्ट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं वो डेटा मैं आपको कल बताता हूँ,
ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं सो बिजी सर, हूँ। हाँ बोलिए। ओके, मैं सॉरी, आज मुझे क्या करना है मुझे अभी भी नहीं क्लियर हुआ। आई एम सो सॉरी। आज आप ये जो डेटा है ना आपके पास में, जो आर डेटा जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, जी। आप मैनुअली पहले बना के देखिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ओके। और एक काम कीजिए, इसका एक सप्लाई चेन आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है कि आपको आपने जो अभी तक के पहले जो रन किया हुआ है, हम्म, तो उसके कुछ डेटा है, उसके मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसमें क्या आपको रेफ़र करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। वो सब डॉक्यूमेंट्स मैं आज पूरे तो नहीं कर सकता, अभी मुझे बाकी भी काम करना है। तो अभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करता हूँ। और बाकी का जो है, अगर आपका जो पहले का जो प्लानिंग एरिया बनाया हुआ है, आप वो प्लानिंग एरिया में एडिट कीजिए और वो सप्लाई चेन को पहले बनाइए अच्छे से, ठीक है। ओके। क्योंकि जो बाकी का, ये बाकी बस प्रोफाइल है, वो जो सप्लाई की जो प्रोफाइल है ना, एस एन ओ पी ऑपरेटर, और उसमें भी हम लोग ह्यूरिस्टिक रन नहीं करेंगे, वो बहुत टेडियस है, उसमें बहुत अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें बस आप अनह्यूरिस्टिक रन कीजिएगा, अनह्यूरिस्टिक रन करके चलाएंगे। ह्यूरिस्टिक में बहुत सारे पैरामीटर, अब ये चेंज नहीं, वो आर एन डी का पार्ट आ जाता है उसमें, ठीक है, रियल टाइम। बस समझ लो कि ह्यूरिस्टिक में भी जो डेटा जब चलता है तो बीच बीच में बहुत रुकता है, कहीं पे डेटा नहीं रहा। तो जो आज मैंने आपको मैंडेटरी फील्ड्स दिखाई है, ठीक है, वो अपने पास में लिखित बना के रख लो उन चीज़ों को, ठीक है, कि नहीं इतने डेटा हमारे पास में मैंडेटरीली होने चाहिए। फिर हम लोग अनकॉन्स्टेंट रन करेंगे उसमें, तो उसके लिए वो एस एन ओ पी ऑपरेटर प्रोफाइल जो रहती है वो बनाएंगे हम लोग, और फिर फोरकास्ट कंजम्पशन वगैरह रन कर देंगे उसमें। उसके लिए की फिगर का डेटा आपको बनाना पड़ेगा। तो की फिगर का डेटा आपको मैं की फिगर की लिस्ट भेज देता हूँ जो मेंटेन करके रखना है एज ए इनपुट की फिगर, ठीक है। आप पहले वो इनपुट ओके। की फिगर मेंटेन कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ कौन से की फिगर बनाना है आपको, ठीक है। तो मुझे स्टोर, उसमें डेटा डाल के रखना है? हाँ डेटा डाल के रखना। अब इसमें नहीं कर सकते ना लगातार, यहीं पे अपन भरेंगे और करेंगे, बहुत समय हो जाता है। तो आप एक काम ओके। कीजिए, स्टोर की फिगर का डेटा उसमें भर के रख दीजिए, बाकी हम सीधा रन करेंगे उसको। मैं आपको लिस्ट ओके। भेज देता हूँ, इनपुट की फिगर कौन सी और आउटपुट की फिगर कौन सी यूज़ करना है, ठीक है। ओके। ठीक है, हाँ, तो ये ठीक। डेटा है, ये डेटा है आपके पास में। तो अभी उसको सिमुलेट वगैरह करके देख लो आपको जैसा लगता है जिस हिसाब से। और एक बार एनालिटिक्स वगैरह में जाके आपका सप्लाई चेन कैसा दिखता है, क्या दिखता है, सब चेक कर लो, ठीक है। ओके। ओके मैम, ओके। उसी के साथ कल हम क्या करेंगे, कल हम आपका, एक मिनट बस।
Hello. Yes, sir. Sorry, Jasmine. Just now I got one good news. I got selected somewhere. Congratulations, sir. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So the thing is that here, okay. Um, what I'm speaking, what I'm just saying, topic. I just wait for You a were word. Uh-huh. sorry, yeah, you were talking about um, the data, the input key figures that you'll provide today. Okay. The input key figures I will provide you. Okay. Input key figure based on that producing, just feed the data over there. Okay. Apart from that, here is the time series. Where is this? अरे यार कहाँ जा रहा है? Here. Okay. Here we have this SNOP profile is there. It's not a big deal to create. Okay. You can create anyhow. Only heuristic we are using. Okay. I'm saying these all things needs a lot of data. Lot of data. So by this thing, I will let you know tomorrow only. Okay, we will perform tomorrow Okay. only this thing. Okay. Right now I will just provide you by एकदम इतने जल्दी तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, मुझे भी थोड़ा समय लगेगा. ठीक है, थोड़ा शाम, अभी 6 बज रहा है ना यहाँ पे, मैं 8-9 बजे तक के ना मैं आपको इनपुट की फिगर की लिस्ट वगैरह मैं भेजता हूँ जो आपको मेंटेन करना है. ठीक है, Okay. आप उससे बस मेंटेन कर दीजिए. बाकी आपने अभी तक की जो चीज़ें सीखी हुई है, आप उस पर ट्रायल परफॉर्म करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से डिमांड विमांड कुछ देखना चाहते हैं, सेंसिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. ठीक है. Okay. ओके. और जैसे आप बोल रहे थे कि जो आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए ना, वो मैं आपको फ्रेम करके दे देता हूँ उसमें. जो क्वेश्चंस मैंने Sure. पूछे थे उसमें आंसर भी मैं बता दूंगा उसमें. गॉट इट. Okay. क्योंकि अभी बहुत सारा जो ऑन डॉक्यूमेंट डेटा मैंने दिया नहीं है, तो वो मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और देना पड़ेगा. ठीक है. ओके मैम. Mhm. ओके. Okay. चलो, हैव अ नाइस डे. You too, sir.